पार्लियामेंट में लोकसभा में रेलवे का डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट प्लेस हुआ है, इसलिए आपके सामने हूँ आज मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है 2,52,000 करोड़ का, और जो मोमेंटम बना है काम करने का देश भर में, उसका लाभ सभी जन जन को मिल रहा है। 140 करोड़ देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे पे जो फोकस है उसका लाभ मिल रहा है। मैं क्विकली आपको पहले बजट के एलोकेशन बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। उत्तराखंड के लिए इस साल का बजट का एलोकेशन है 4,641 करोड़, 4,641 करोड़। टोटल 11 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए बजट एलोकेशन है 2,716 करोड़, 2,716 करोड़। टोटल 4 स्टेशन हैं जिसको अमृत स्टेशन के तहत नया बनाया जा रहा है। पंजाब के लिए एलोकेशन है 5,421 करोड़, 5,421 करोड़। ये अगर यूपीए समय का एलोकेशन देखें तो पंजाब को यूपीए के समय में मिलता था 225 करोड़, यानी उससे 24 गुना ज्यादा एलोकेशन है। टोटल 30 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत नया बनाया जा रहा है। तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हरियाणा के लिए बजट एलोकेशन बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड एलोकेशन है 3,416 करोड़, 3,416 करोड़। और 34 स्टेशन को अमृत स्टेशन कार्यक्रम के तहत मॉडर्न नए तरीके से बनाया जा रहा है। हाईवे, or you take the example of, let's say, Delhi Gurgaon. Right. You'll be very familiar with Delhi Gurgaon. 4 lanes on this side, 4 lanes on that side, 8 lanes. Even if it is a 4-lane highway, 1 lane, if there is a car which has got damaged and that has stopped, you'll find that almost 1.5 kilometers behind it, there is a congestion. Right. You have seen that, observed that? Right? That is because the network theory has that exponential factor in its, and this is common across all networks: railway network, highway network, transmission network, telephone network. In your telecom network, if there is one route, there are 15 routers. Out of that, one router gets damaged. Suddenly you will find call quality getting down. Network theory is very interesting. You read that a little bit on like whichever way, or I can discuss offline also. So that's why we are focused on improving the network efficiency. You remember Dr. Sridharan, he used to say that instead of having a separate corridor approach, focus more on developing the entire network. He used to say that. So where does that leave DFCC at this point? It will primarily be an operating agency for the 2 corridors that will be there? Because they are operating it, right. And they are also integrating it with the, there are multiple places where cargo originates. Right. So at 15 new places they are integrating with the existing network. Right. Otherwise for many places they didn't have an integration point. You see the network impact. Right. That is the way we need to very meticulous. Networks like railway network and highway networks and telecom networks, they have to be planned in a very scientific way, very scientific way. 2 questions. One following up on what Abhishek asked. Freight growth, of course, recent years has been great, but I think a lot of the criticism that comes from the sector and experts comes from the fact that it is sort of shy when you look at your own targets, in the sense of like Mission 3,000 million tons by 2030.
So in that sense, I think the question on freight growth is arising because it's sort of slowing down against against targets that you set for yourself in the railways. So in terms of that, I think if there is some sort of roadmap in terms of, are we still looking at देखो, Mission 3000? हाँ, of course we are looking at Mission 3000. There are certain projects which bring a quantum jump in Right. cargo addition. Right. And for example, when this Sonagar to Andal, quadrupling, that project gets completed, there will be a sudden quantum jump. Right. Correct? For example, when the Paradip-Haridaspur line will get doubled, there will be a quantum jump. Right. When the flyover from Shiju to Cuttack, that flyover gets completed, it's a small flyover, that gets completed, there will be a sudden jump. So that is the way it works, because the entire network for decades and decades it was neglected. Right. Investment was not made in it. 20-25,000 crore rupees investment was annual investment. Now we are adding 2.5 lakh crore investment. So the projects are coming up in a very, one by one the projects are coming up. And as they come up, the bottlenecks get removed. And then we can add more. So will you be taking a call on the 3 new DFCs this financial year? Now we have taken that corridor approach, as you are aware, where we have taken all the origin points and all the destination points. Correct? All the origin points, all the destination points, as we know today, have been put on the PM Gati Shakti master plan. Right. There are some places where you require addition of only one line for a few kilometers. There are some places where you need to have third and fourth line. There are places where you need to do completely new line. There are places where you need to do a ROR, rail flyover. Right? So multiple interventions are being done so that the entire network becomes more efficient. नमो भारत ट्रेन बहुत चलाई जाएगी. नमो भारत रैपिड रेल है. 140 kmph की उसकी डिजाइन है अभी जो चल रही है गाड़ी वहाँ पे. आप देखोगे जो अहमदाबाद से भुज के बीच में वो 130 के लिए अप्रूव हुई थी, उसको अपग्रेड किया गया 140 के लिए, और बहुत अच्छा एक्सीलरेशन उसका 0.7 या 0.8 एक्सीलरेशन है, यानी मतलब रैपिडली आगे बढ़ जाती है. तो वो उसमें अभी जो पहले बनाया था वो पूरी एसी थी. अब जो लोगों से डिमांड आई कि कुछ एसी रखो और बाकी नॉन एसी रखो. तो नया जो रेट बन रहा है, नए जो 50 बन रही है, अप्रूव हुई है इस बजट से, वो उसमें कुछ एसी कुछ नॉन एसी रखेंगे तो देश भर में वो चलेगी. फिर ये 16 का रैक होगा या 24 का रैक होगा? टेक्निकल लोग को भी बना है. सर क्लियर हो ना क्वेश्चन? सर महाकुंभ का रेलवे का कुछ अगर एक सेकंड पूरा सीक्वेंस में चले ना आप. हाँ. Sir, so I had a couple of questions. One of which is investments by the railways across PSUs, JVs, SPVs have gone down by at least 20% for this budget, the budgeted numbers. That's one. Why so? And particularly it has been in DFC, dedicated freight corridor. And क्योंकि also- प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना DFC का. And Bangalore Metro has also gone down. जहाँ प्रोजेक्ट बैंगलोर मेट्रो हमारे इसमें नहीं है. K-Ride investments. K-Ride में भी काम में बहुत दिक्कतें आ रही है. So Serious those are problems. So those are the one, that's point one. And the second question is also, if I look at the freight growth numbers that you're projecting, it's flat. The growth rate has been flat at 4%. No, you have to look at the growth in the last few years. देखो पहले क्या होता था, अगर आप पहले के पीरियड के देखो, तो इंक्रीमेंटल कार्गो एडेड इन ए ईयर यूज्ड टू बी कभी 10 होता था, कभी 15 होता था, कभी 20 मिलियन टन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार गया तो 40-45 गया. राइट? अभी आप देखो, because of a concerted effort and because of removing the bottlenecks, एक साल में 150 मिलियन टन ऐड हुआ. राइट? सो नाउ द बेस इज वेरी हाई. Base is already very high, and reaching 1.6 billion tons, that was kind of a dream for the railways. वो milestone, which is a very big milestone, that milestone we are achieving this year. One is rupees 2593 crore allocated for budget Delhi. हिंदी में बोलो ना यार आराम से. तो दिल्ली में इसको आप किस तरीके से यूज करना चाहेंगे? रिसेंटली आपने ये भी अनाउंस किया कि आपने 130 kmph स्पीड के लिए उसको अपग्रेड किया ट्रैक्स को. तो दिल्ली से जो बाकी के प्रोमिनेंट सिटीज की जो कनेक्टिविटी है, इसमें जो टाइम रिड्यूस करना है, ग्रेडेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. कि देखो जितने बड़े शहर हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है. आप
देखोगे डिमांड आती है लगातार दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलुरु के लिए, पुणे के लिए बहुत डिमांड आती है। और उन शहरों में नई ट्रेन्स को लेने की कैपेसिटी क्रिएट करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत फोकस किया हुआ 2-2.5 साल हो गए कार्यक्रम चल रहा है ये, जिसमें यार्ड्स को रीमॉडल करना, नए टर्मिनल बनाना, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करना, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़े। मैं एग्जांपल 2 देता हूँ। एक तो दिल्ली का एग्जांपल है, बिजवासन पूरी तरह से नया टर्मिनल बन रहा है, बन के करीब करीब रेडी हो गया है, बहुत जल्दी। ये तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए अभी इनॉग्रेट नहीं कर सकते, चुनाव के बाद में इनॉग्रेशन करेंगे उसका। बेंगलुरु में बाइपनल्ली तो पूरा नया टर्मिनल बना। वैसे ही सूरत में उधना नया टर्मिनल बना। वैसे ही बेंगलुरु में मैंने बताया, हैदराबाद में चरलापल्ली भी नया टर्मिनल बना। तो हर एक बड़े शहर में नए टर्मिनल्स पे काम हो रहा है। चेन्नई में एलम्बूर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और भी कई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि बड़े शहर में टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़े। एक ऐसा इसका एक स्टेटमेंट बना लेना भाई, है ना, सारे जहाँ पे, ताकि आराम से अपन दे सके, सबको शेयर कर सके जी। तो उससे जो बार बार डिमांड आती है कि नई गाड़ियाँ चालू करो, नई गाड़ी चालू करो, तो वो उससे संभव होता है। सर आपने जो पंजाब सॉरी हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था दिल्ली से जो पानीपत का रीजनल रैपिड ट्रेन कब तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मेरठ का तो आज इसी वर्ष शुरू हो रहा है। और वो RRTS का प्रश्न आप अर्बन डेवलपमेंट यूडी में सर एक सवाल है। दिल्ली और आसपास की जो कनेक्टिविटी है ज्यादातर EMU और मेमू है, तो सर आपने कहा है कि पंजाब के लिए 24 गुना यूपीए के कार्यकाल से अगर हम कंपेयर करें तो बड़ा है, तो इसमें पंजाब को क्या कुछ नया मिलने वाला है? काफ़ी कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी फंड्स लगेंगे। तो डिटेल आपको जो नए प्रोजेक्ट्स, देखो अब पद्धति पहले से बदली है। पिछले 5-7 साल में अगर आपने देखा होगा कि वो जो पुराना मेथड था जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट का नाम पिंक बुक में लिख लेते थे और 1000 रुपये, 1 लाख रुपए इस तरह का एलोकेशन कर देते थे नाम के वास्ते, वो पद्धति बदल चुकी है। अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सर्वे करना, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, DPR लाना, फिर अगर एक्चुअल में उसका ट्रैफिक का पोटेंशियल है तभी कैबिनेट में लेके जाना, वो प्रोसेस चलता है। सर कोई नई ट्रेन है प्रपोज्ड इसके लिए? पूरे साल भर ऐड होता है, तो साल भर ऐड। क्योंकि पंजाब की मांग के लगातार पिछले दिनों से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली और भटिंडा से दिल्ली वंदे भारत की जा रही है, क्या ऑलरेडी है तो चली रही ना। अमृतसर से दिल्ली तो वंदे भारत चली। ओके, और भटिंडा से दिल्ली देखेंगे। सर मालवाहक ट्रेन क्या लेकर क्या स्थिति हरियाणा को लेकर? मालवाहक में इस बार रिकॉर्ड एक नया बन रहा है, 1600 मिलियन टन, 1.6 बिलियन टन का। 1.6 बिलियन टन होने से दुनिया के टॉप 3 रेलवेज में भारत का नाम आता है। सर कवच को लेकर हरियाणा में क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे पूरे देश को देखो, कवच आप देखो, जो हमसे समृद्ध देश है, जो जिनका नेटवर्क हमसे आधा था, उसको कंप्लीट करने में उनके 15 साल, 20 साल, 25 साल लगे। अपन ने टारगेट लिया है कि जो जुलाई 2024 में अप्रूव हुआ कवच, तब से 6 साल के अंदर पूरे देश को कवर करना है। 6 साल में पूरा देश कवर करेंगे। सर फेज वाइज अगर आप इसको कर रहे हैं तो तेजी से चल रहा है अब तो, मतलब आप फेजिंग 10,000 लोगों को एक साथ 10,000 पीछे उधर चल। सर लास्ट में कौन पूछेगा? सर ये जो दिल्ली और हरियाणा की बात की, और खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें, अमृतसर स्टेशन की बात की है डेवलप करने के लिए, तो कुल इतने स्टेशन इसमें आप डेवलप कर रहे हैं, और कैसे बदलाव होगा? आपने जाके देखना चाहिए, आपने एक्चुअल में जाके देखना चाहिए, और नहीं तो मैं आप कहोगे तो आप सबके लिए अलग से प्रेजेंटेशन का सेशन रख लेंगे। बहुत मेजर चेंज आ रहा है उसमें। पंजाब में 30, हरियाणा में 34 स्टेशंस को पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। आपको एक आध जाके स्टेशन जाके देख के आओ, मैं व्यवस्था करवा लूँगा, जाके देख। हाँ सर ये हाइड्रोजन ट्रेन का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। रेक होगी या नॉर्मल HB होगी? रेक एकदम नए तरीके से अभी रेट्रोफिट कर रहे हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी उसके पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी है। ये जो कोच है, बोगी है, उसमें कोई नया नहीं है, वो तो लंबे टाइम से चला रहा है। पावर ट्रेन नई तरह की।
सर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो था केयर वाला उसमें कुछ प्रगति है, वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है। ना उसमें तो हमने राज्य सरकार को उनके जवाब जो थे वो दे दिए। सर उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में तो ट्रेन का है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी क्या नया प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है जो अपना उत्तरकाशी की प्रोजेक्ट है जो पूरा एकदम करीब करीब टनल के अंदर से ही बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और भी नहीं आएंगे रीजनल रैपिड रेल्स के लिए भी क्या कोई रीजनल रैपिड रेल में रेलवे में जो मॉडल है वो नमो भारत का मॉडल है और बाकी जो दूसरा जो मेरिट वाला मॉडल है वो मॉडल अर्बन डेवलपमेंट है। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं? सर नमो हरियाणा से है कि नमो भारत ट्रेन की कोई योजना है हरियाणा में, अगर है तो पूरे देश भर में चलिए 50 स्टेप बनाने की पूरे देश भर में तो हरियाणा भी कवर किया जाएगा। सर वन मोर क्वेश्चन, जो हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेड प्रस्ताव है उसकी क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत जल्दी उसका भी इनॉग्रेशन होगा। कब तक इस बजट में 6 और नई हाइड्रोजन ट्रेन्स का प्रावधान रखा गया है और इस बार 1200 हॉर्स पावर से भी बढ़ा के 1600 हॉर्स पावर का रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन 1000 कितनी 1600 हॉर्स पावर। कितनी सर हाइड्रोजन? 6 सर टोटल आउटले सर कितना है? 2.52 लाख करोड़ ऐसे कुछ आ रहा है। 2,52,000 करोड़। तो 4.6 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स रेलवे की 5 से 7 साल की लाइफ होती है ना। हाँ अच्छा, सो इट्स बियॉन्ड दिस ईयर, मतलब 5-6 साल प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, उसके प्रोजेक्ट्स बाद में लैंड एक्विजिशन, डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, सारा काम। सर 4.6 लाख इज ओवर हाउ मेनी, ओवर व्हाट पीरियड? प्रोजेक्ट तो हर साल नए ऐड होते हैं और कुछ सर एक हाइड्रोजन ट्रेन का क्या कॉस्ट होगी? अभी मैं बताऊँ इधर से तो मेजर जो ट्रंक रूट्स हैं GCGT रूट हैं उनको थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पे जाकर के उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को क्या हमारे इस नए वाले बजट में उसको लेकर के कोई फोकस है या बिल्कुल। जो टोटल 4,60,000 करोड़ नए जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन हुए हैं, 4,60,000 करोड़ के नए सैंक्शन हुए, उसमें से करीब करीब 30,000 करोड़ है नए ट्रैक्स के लिए और करीब 2,30,000 करोड़ है डबलिंग और ट्रिपलिंग और क्वाड्रपलिंग के लिए। 2 लाख बाद में इधर आएंगे और उसके बाद में वर्चुअल साइट्स पे। सर मैं विनोद श्रीवास्तव राष्ट्रीय सहारा से। जो अमृत भारत ट्रेन जो बहुत लोकप्रिय हो रही है, जो मिडिल क्लास की ट्रेन चली जा रही है, इस पर 2 ट्रायल हम लोग चला रहे हैं, ट्रायल चला रहे हैं। अभी ये इस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ आने को उम्मीद है क्या? 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेगी। Sir, this side Deepak Jha from Pioneer. Since you have been comparing from UPA and listening to budget also, since UPA days we have been hearing about the modernization of New Delhi railway stations and the peripheral of the काम ऑलरेडी चालू हो गया, जाके देख के आइए, काम चालू है। New Delhi and other like Olympic Kala and all हाँ these हाँ, stations. इसका दिल्ली कैंट का, न्यू दिल्ली का, सफदरजंग का, इसका बिजवासन का, ये तो काम ऑलरेडी बहुत तेजी से चल रहा है, जाके देखते उसके लिए कोई डेडिकेटेड इसमें दिल्ली वाले बजट पूरी टीम लगी हुई है। और देखो अब बजट का तरीका बदल गया है। पहले तरीका था कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ ऐसे दिए जाते थे। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए वैसे थ्रू आउट द ईयर फंड्स एलोकेट होते हैं और देश भर से मैंने फीडबैक लिया है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैसिव इन्वेस्टमेंट होगा रेलवे के पुराने ट्रैक्स को बदल के नए ट्रैक्स पे अपग्रेड करने में आने वाले समय में। या आने वाले 3-4 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें रेलवे के ट्रैक्स के अपग्रेडेशन पे मिशन मोड में काम होगा और कवच के इंस्टॉलेशन पे मिशन मोड में काम होगा। कवच आपको सबको जानकारी है कि पिछले साल 16 जुलाई को 2024 16 जुलाई को कवच का फाइनल अप्रूवल हुआ था RDSO की तरफ से और उसमें उसके बाद में तुरंत बाद में 10,000 कोच पे एक साथ लगाने का काम चालू हुआ है और करीब 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पे कवच को लगाने का काम एक साथ चालू हुआ है, जिसमें डिज़ाइन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसा आप जानते ही हो कि पूरा टेलीकॉम नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं और कवच लगाना पड़ता है गाड़ी के ऊपर। 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है कवच में। मैं यहाँ पे रुकूंगा और क्वेश्चंस लूँगा और ये तो पार्लियामेंट में अप्रूव्ड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
2593 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन है दिल्ली के लिए, जो कि यूपीए का जो बजट एलोकेशन होता था 96 करोड़ होता था यूपीए के पीरियड में, उससे 27 गुना ज्यादा, 27 टाइम्स। इसके अलावा साथियों, ओवरऑल 2-3 बातें जो जनरल है, जो सभी पूरे देश भर के लिए। पहला, इस बजट में 50 नई नमो भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग और 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो फंड्स एलोकेट हुए हैं उससे इस तरह से नए कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे और 1000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आप जानते हो नमो भारत ट्रेन्स बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। पहली जो ट्रेन है लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसमें नया जो नई रेक्स जो बनेंगी उसमें 16 कोच की अगर ट्रेन बनती है तो कुछ रहेंगी एसी, बाकी रहेंगी नॉन एसी नमो भारत में। अभी जो पहला रेक बनाया था वो फुल्ली एयर कंडीशन थी, तो लोगों की डिमांड आई है उसमें कि कुछ आप नॉन एसी बनाओ और कुछ एसी बनाओ। तो नई जो नमो भारत ट्रेन बनेंगी उसमें कुछ, जैसे मान लो 16 है तो 16 में से कुछ एसी रहेंगी और कुछ नॉन एसी रहेंगी। टीम उस पर इवैल्यूएशन कर रही है कि क्या सही करके देखते हो। वंदे स्लीपर का टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपने तो वो वीडियो देखा भी होगा। 180 kmph पे गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, तब कोई उसमें पानी का ग्लास हिलता भी नहीं है, तो वो भी आपने वीडियो एक देखा होगा। बड़े गौरव की बात है कि हमारे इंजीनियर्स ने देश में इतनी अच्छी ट्रेन का डिज़ाइन किया है।